Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will start a new chapter, chapter 3rd, that is nature of matter. Before starting this chapter, first of all, I would like to tell you that what is matter. Matter is something which you see around you. And matter is that object that has mass and occupy space. आप अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हो दैट इज नोन एज अ मैटर. मैटर जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, दैट मीन्स कुछ वेट होगा, एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. नेक्स्ट इज look at the marble in the given box. As you can see in this first picture that there are some marbles that are red in color and other marbles are blue in color. Marbles, then what we will do? We will put them in two groups. First group which containing red marbles and second group containing blue marbles. So in first red marbles there are 10 in number and blue marbles are also 10 in number. Next is, now look at the marbles in the box here. In second picture you can see that color of marbles is same but size of these marbles are different. So in this case also we will put these two marbles in two groups. First group containing large size marbles and second group containing small size मार्बल्स. बेटा आपको दोनों पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास रेड और ब्लू कलर के मार्बल हैं फर्स्ट पिक्चर में. तो हमने दो ग्रुप बनाए, फर्स्ट ग्रुप में रेड मार्बल्स और सेकंड ग्रुप में ब्लू मार्बल्स. ऐसे ही सेकंड पिक्चर में आपके पास कलर सेम है बट साइज इज़ डिफरेंट. तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बिग साइज़ को अलग ग्रुप में रखा हमने एंड सेकंड स्मॉल साइज़ को नेक्स्ट ग्रुप में. नेक्स्ट इज, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल्स. Some materials are given to you like wood, water, air, glass, tumbler, steel plate, milk, plastic, bucket, kerosene. These are some materials. As you can see that they have different properties. As you know that wood is a solid. There are three states of matter: solid, liquid and gas. So wood is solid, water is liquid, air is gas, glass is solid, steel plate is also solid, milk is liquid, plastic bucket is solid, kerosene is a liquid. They have different properties but some of them are naturally occurring while others are man-made. In this third part there are two type of materials given to you. First is natural material and second is synthetic materials. Natural materials are those which occurs naturally and synthetic materials are the materials which are prepared by man or you can say man-made materials. तो बेटा आपको टू डेफिनेशंस गिवन है इस थर्ड पार्ट में. दैट फर्स्ट इज नेचुरल मटेरियल्स. नेचुरल मटेरियल्स वो होते हैं जो नेचर में आपको अपने आप से बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे एयर है ना. तो ये नेचर में गॉड गिफ्टेड है, हमें भगवान से मिली हुई है, हमने ह्यूमन बीइंग ने इसको नहीं बनाया. ऐसे ही सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जो मैन मेड, जिनको ह्यूमन बीइंग बनाता है, लाइक साइकिल, टैप, हाउस, बस, प्लेट, टम्बलर. दीज आर मैन मेड मटीरियल्स. तो आपको बेटा फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है, देर आर टू ग्रुप्स गिवन टू यू. फर्स्ट इज नेचुरल मटीरियल एंड सेकेंड इज मैन मेड. नेचुरल मीन्स जो नेचर में अपने आप से अक्कर करता है, like wood, water, air, milk, oil. These are natural materials and man-made materials are plate, tumbler, bucket, cycle. These are man-made. That means these materials are made by a human being. So you have to complete first activity on page number 35. Next is, in the all above cases various things having similar properties have been grouped together. Such a grouping of materials having similar property is known as a classification. What is the meaning of classification? Classification means to put a similar group of materials in a same category. क्लासिफिकेशन में क्या करें बेटा, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है उन मटेरियल्स को हम एक कैटेगरी में रखेंगे. नेक्स्ट इज, व्हाट इज मैटर? मैटर ऑल द थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू.
आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो दैट इज़ नोन एज अ मैटर. मैटर हैविंग मास एज वेल एज ऑक्यूपाई स्पेस. फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग बुक इन योर हैंड नाउ, है ना. तो आप क्या करो, बुक को रख के देखो तो बुक क्या करेगी, जिस भी प्लेस पे रखा, सपोज दैट आप टेबल पे रख रहे हो उसको, तो बुक ने क्या करा, स्पेस ऑक्यूपाई करा. जब आप बुक को उठा रहे हो तो आपको कुछ इसका मास भी लग रहा है, कुछ हैवी लग रही है आपको, दैट मीन्स दिस इज़ अ मैटर. मतलब आप अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हो जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, दैट मीन्स कुछ भार होगा, जब आप उठाते हो तो कुछ आपको हैवी लगती है वो. एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जहाँ आप रखोगे तो कुछ ना कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगी, दैट इज़ नोन एज अ मैटर. ऑल मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. देर आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर. तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्टेट ऑफ मैटर, solid, liquid and gases. These are state of matter. Next is we will do page number 36. Write 5 examples each of solid, liquid and gases. हमने पीछे बताया that matters की 3 states हैं, solid, liquid and gas. तो आपको तीनों के example देने हैं. First is solid and example of solid are wood, table, pen, pencil, chair, book, notebook. These all are solid. And next is liquid, water, cold drink, juice, oil, diesel, petrol. These are example of liquids. Next is gases. Gases like oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide. These all are gases. Next is constitution of matter. That means matter में क्या क्या प्रेजेंट होगा. All matter is made up of very small particles. Different state of matter have different arrangement of these particles. In solid, the particles are very tightly packed with each other and cannot move. Hence, solid have a fixed shape and a definite volume. As you can see in picture, beta, that in solid, in this picture, solid particles are very tightly packed, and solid have fixed shape and a definite volume. But in liquids, particles are less tightly packed and cannot move, can move a little. As you can see in this picture, beta, liquid particles are less tightly, मतलब solid में ज़्यादा tightly packed थे, but liquid में इतने ज़्यादा tightly packed नहीं है. And liquid में particles move कर सकते हैं. तो लिक्विड पार्टिकल्स की फिक्स शेप नहीं होती. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पेंसिल, दैट इज पेंसिल इज सॉलिड एंड पेंसिल हैज़ फिक्स्ड शेप. बट फॉर लिक्विड you can take example of water. Water do not have fixed shape. Then you put water in circular container, then it will take circular shape. If you put water in rectangular container, then it will contain a rectangular shape. This means shape of liquid is not fixed. Clear हुआ बेटा. solid में shape fix रहती है, आप कहीं पर भी राइट पुट कर दो, बट लिक्विड में पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से शेप जो है वो फिक्स नहीं है. नेक्स्ट है गैसेस में पार्टिकल्स आर वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर. They can therefore move far apart from each other. Hence, gases have neither a fixed shape nor a definite volume. As you can see in this picture, that gaseous particles are moving here and there. There are lot of space between them. This shows that gaseous particles have not fixed shape and not fixed volume. ना तो इनकी शेप फिक्स होती है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है. बेटा लिक्विड में जैसे आप वाटर लेके चल रहे हो, शेप चेंज हो रही है, बट उसका जो साइज़ है, जैसे अगर आपने 2 लीटर वाटर लिया तो आप किसी भी कंटेनर में रखोगे तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा 2 लीटर, बट गैसेस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं रहता. फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम की बोतल लेके आते हो, तो जब वो छोटे से स्पेस में है, बोतल के अंदर है, तो वो कम वॉल्यूम के अंदर भी आ रही है, बट जैसे ही आपने उसको स्प्रे किया तो वो पूरे रूम में उसकी फ्रेगरेंस स्प्रेड हो जाती है. दिस शोज़ दैट गैसेस का ना तो साइज़ फिक्स है, ना ही उसका वॉल्यूम, ना ही उसकी शेप फिक्स है. क्लियर हुआ बेटा. जिस भी प्लेस पे रखोगे, आप थोड़े से प्लेस में रखा तो उसने वॉल्यूम को अपना कम कर लिया, बट अगर आप ज़्यादा प्लेस में रखते हो, फॉर एग्जांपल रूम में स्प्रेड किया, तो गैस जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो ना तो फिक्स है, ना ही उसकी शेप फिक्स है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. लेट अस नाउ स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर.
Appearance and feel. Materials are known to differ from one another in terms of their appearance. Appearance means how they appear. That means some material appear luster, some appears dull. Luster means shining. And their feel, some materials feel smooth and the surface of some materials are rough. For example, metals generally have a lustrous appearance. Metals like iron, और यू कैन से कॉपर, दीज मेटल्स हैव शाइनिंग अपीयरेंस. स्टील, आपके घर पे स्टील के बर्तन आप यूज़ करते हो बेटा, तो स्टील की अपीयरेंस कैसे है, आपको शाइनिंग लगता है. लस्टर मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस. एंड जब आप उसको टच करते हो तो सरफेस कैसा लगता है आपको इसका, स्मूथ. नेक्स्ट इज दिस एक्टिविटी इज गिवन टू यू. एड more names of a few things which differ on the basis of their appearance and feel. फर्स्ट आपको गिवन है पॉलिश्ड मार्बल. तो पॉलिश्ड मार्बल है, पॉलिश है तो ऑब्वियसली उसका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा. एंड अपीयरेंस कैसी होगी उसकी, लस्ट्रस. पॉलिश किया हुआ है तो उसकी लस्टर होगी, मतलब शाइनिंग अपीयरेंस होगी. नेक्स्ट इज सैंड पेपर. सैंड पेपर का सरफेस कैसा होता है, रफ. एंड अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, डल. सैंड पेपर होता क्या है बेटा, एक्चुअल में ये ब्राउन कलर का सैंड पेपर होता है ये. एंड इसका यूज़ करते हैं बेटा आफ्टर पेंटिंग. जब आप घर पे पेंट कराते हो तो उसके बाद उस पेंट कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, डॉट्स रह जाते हैं, उस डॉट को रिमूव करने के लिए आप सैंड पेपर जो यूज़ करते हो उसको टच करके देखना, रफ लगेगा आपको. एंड अपीयरेंस कैसे होती है उसकी, डल. नेक्स्ट आपको कुछ एग्जांपल देने हैं. फॉर एग्जांपल स्टील. स्टील का सरफेस कैसा है, स्मूथ है. अपीयरेंस कैसी है उसकी, लस्ट्रस, शाइनिंग अपीयरेंस है. एंड आयरन जो है, आयरन की सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा. और अपीयरेंस भी कैसे होती है, लस्टर. जब आप कोई आयरन का ऑब्जेक्ट न्यू लेके आते हो अपने घर पे, फॉर एग्जांपल आपके घर पे न्यू विंडो लग रही है, आयरन विंडो, तो स्टार्टिंग में आपको आयरन कैसा लगता है, बहुत स्मूथ लगता है. एंड लस्टर मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस होती है. बट आफ्टर फ्यू मंथ और फ्यू ईयर्स it appear dull. Why? Because due to corrosion. Corrosion means आयरन पार्टिकल्स जो है उसको रस्ट लग जाती है जब वो वाटर या फिर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. एज यू कैन सी इन दिस थर्ड एक्टिविटी, दिस गर्ल इज टेकिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास and you know that from this transparent glass we can see on both the side. So transparency is the property of a material to allow light to pass through. It is called transparency. That means light का पास करना, मतलब इस ग्लास की दूसरी साइड भी बच्चे को दिखाई दे रही है कि कैंडल रखी हुई है. So take an empty glass tumbler, hold it against light and look through it. Can you see the light on the other side of the tumbler? Yes. कैंडल दिखाई दे रही है बेटा आपको. जब आप इसको टम्बलर में से देखोगे तो आपको लाइट दिखाई देगी. वाई? बिकॉज दिस टम्बलर इज ट्रांसपेरेंट. एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट जो है वो पास कर सकती है. बट इन एक्टिविटी 4 एज यू कैन सी दैट वुड इज ओपेक मटेरियल. ओपेक मीन्स इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम. वुड को की दूसरी साइड जब ये गर्ल देख रही है तो क्या आपको लाइट, दैट मीन्स जो ये कैंडल है वो दिखाई देगी, नहीं देगी. किस लिए? बिकॉज वुड जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है. तो मटेरियल को हमने कैटेगराइज करा. फर्स्ट हमने बोला ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जिनके हमें दोनों साइड दिखाई देता है. एंड ओपेक मटेरियल्स जिनके हम दूसरी साइड लाइट को नहीं देख सकते. दैट मीन्स वुड इज़ एन ओपेक मटेरियल बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट. वुड में से लाइट पास नहीं हो रही है तो वुड क्या होगा, ओपेक मटेरियल होगा. Next activity is given to you on page number 38. What is given in this activity? Floating and sinking. Floating means float करना, that means किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना. एंड सिंक मीन्स उसका डेप्थ में चले जाना. As you can see in activity 5, you have to take some water in beaker, container or mug. Now drop some pieces of ice in the water. What do you observe? You will observe that ice pieces are floating on water. As you can see in picture बेटा, that जो ice है वो water पे float कर रही है.
वाटर पे तैर रही है ना, किस लिए? बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर. बट in activity 6 you are given some pebbles or stone you can take. When you put stone in water, then you will observe that pebbles are heavier than water and they get sink. As you can see in picture, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको, ये देखो जो ये पेबल्स है वो सिंक कर रहे हैं. सिंक मतलब वाटर के नीचे चले गए वो, किस लिए? बिकॉज पेबल्स आर हैवी देन वाटर. पेबल्स जो है वाटर से हैवी है और हैवी ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं एंड लाइटर ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे. बेटा ये एक्टिविटी आपको अपने घर पे करके देखनी है. यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. आप मग लोगे, मग में आइस पीसेस को डाल के देखना, पेबल्स को देखना. तो जो आइस है वो फ्लोट करेगी एंड पेबल्स जो है वो सिंक करेगी. इसी तरह से आप और मटेरियल्स लेकर के इस एक्टिविटी को चेक कर सकते हो वेदर दीज मटेरियल्स आर सिंकिंग और फ्लोटिंग. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन बेटा? The property of mixing of particles of two materials on their own is called diffusion. That means two particles का अपने आप से mix हो जाना, that is known as a diffusion. This happens due to free movement of particles of such materials. Gases diffuse very quickly into each other because their particles are free to move. As you can see in this activity that agarbatti is given to you and you can see that agarbatti lighted in one corner of room, but very soon its fragrance spread in the whole room. This happens because agarbatti diffuses into the air present in the room. डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या बताया बेटा? दैट पार्टिकल्स का अपने आप से मिक्स हो जाना एयर के अंदर. एंड डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैसेस में, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए. सॉलिड में डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं करते. लिक्विड में थोड़े बहुत मूव करते हैं बट गैसेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. तो आप देखो, आपको इस एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है, हमने रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती को लगाया. तो ये जो आपको ये पार्टिकल स्मोक दिखाई दे रहा है, ये अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं कहाँ पर? एयर में. तो क्या होगा? पूरे रूम के अंदर इसकी फ्रेगरेंस स्प्रेड हो जाएगी. दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस. सो दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू बेटा. what is given in this last activity? Last activity is based on diffusion process. In diffusion, particles mixed themselves in air. As you can see that agarbatti is lighted in one corner of a room, but its fragrance spread in the whole room because particles of agarbatti get mixed in air due to diffusion process. So this activity is clear to you beta. You have to try activity 5 and 6 at your home by taking a lot of particles and you have to tell me that whether they are floating or sinking. So today your work is read chapter 3 up to page 38. That means you have to read page number 34, 35, 36, 37 and 38. Okay beta, have a nice day.